ये डाउट, ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रहता है कि दैट इफ आई एम अ नेट क्वालिफाइड बट विदाउट पीएचडी, आई डोंट हैव अ पीएचडी बट आई एम नेट क्वालिफाइड, और I am doing the PhD. I'll complete my PhD within upcoming months or year, but I am non-net student. I have not qualified the net. Then मेरा क्या होगा? Will be eligible for the assistant professor vacancies in the central universities? Because हमारा aim हमेशा starting का रहता है, I'll go to the central universities, I'll join as an assistant professor. Because जिसका भी teaching का aim है, first of all their preference will be like the central universities. So in both the cases, are you eligible or not? नेट है, पीएचडी नहीं, पीएचडी है, नेट नहीं. तो चलिए, टुडे आई गो शो यू द लाइव एग्जाम्पल्स ऑफ द असिस्टेंट professor positions in central university, and you will decide that whether you are eligible or not. So with two live advertisement of the central universities, I'll explain you कि क्या post आएंगी and in which post you will be eligible if you are net or non-net. So eligibility criteria will be covered, then the selection criteria, and then the process, how you will be selected and will be joined an assistant professor in the central universities. So this is one of the first example of the Central University. This is the Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak. बहुत ही famous university है, बहुत अच्छी university है. And there is a live advertisement for recruitment of the teaching post. अभी आपको ये देखना क्यों ज़रूरी है? Because if you have not taken the admission or already admission ले चुके हो, you are about to finish your PhD, then in both cases you must know कि अभी क्या करना है. Now, see, we'll go to the advertisement detail कि क्या है. This is the advertisement. 15/7/2023 लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है. एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे ऑनलाइन भरना है, वो सब चीज़ मैं नहीं बताने वाला. माई फोकस इज you are eligible or not. This is the main important thing. Now these are the vacancies: post, professor, associate professor, assistant professor, and this is the pay scale. अगर किसी को पे स्केल के बारे में पता करना है, नहीं समझ आ रहा है, तो you just comment me. I'll tell you know कि क्या होता है पे स्केल, क्या होता है पे लेवल, and all these things. Now see, these are the department under which the vacancies are there: biotechnology, botany, business management, chemistry. Why I'm telling you, please listen it very carefully. If you have not taken admission in PhD, if you are already enrolled, or if you have completed, अप्लाई ज़रूर करो एडवर्टीजमेंट को, बिकॉज यू आर एलिजिबल. तो वही चीज़ को आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप. नाउ इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह, ये सारे डिपार्टमेंट हैं. हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, मिजोलॉजी, नर्सिंग, परफॉर्मिंग आर्ट, फार्मेसी, फिजिकल एजुकेशन. कुछ भी मिस मत करना, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट कवर हैं. दिस इज़ अ वेरी बिग एडवर्टीजमेंट. ओके, योगा, जोलॉजी. नाउ सी, हम लोग आएंगे सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द क्वालिफिकेशन. नाउ फॉर द प्रोफेसर क्वालिफिकेशन, यू नो वेरी वेल, प्रोफेसर इज द हाईएस्ट रैंक. तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको पीएचडी चाहिए होती है, और कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए होता है 8-10 साल का, और बहुत सारे पेपर चाहिए होते हैं. सो पीएचडी और 10 साल एक्सपीरियंस एज एन एसोसिएट प्रोफेसर, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर प्रोफेसर. So I'll skip the professor, I'll skip the associate professor, I'll directly come without wasting the time on the assistant professor. Now see, this is the assistant professor, in which these are the department under which the vacancies there, like biotechnology में है, botany में है, chemistry में है, computer science में, ये सारे में है. Now चाहिए क्या? The master's degree with 55% marks. So if you are a master's student with minimum 55% marks from Indian University or equivalent university, then you are eligible for that. Second qualification is qualified net. JRF नहीं है, no problem. Otherwise students हमेशा परेशान रहते हैं कि I'll qualify first the JRF before submission of my PhD thesis, but this is the wrong concept. You will be eligible, qualified net. Now read this line. This line is very important. Candidates who have been awarded a PhD degree in accordance with the provision contained in the paragraph 4.1 UGC Regulation 2018 are exempted from the requirement from the net. Means if you are a PhD student, अगर आपको PhD award हो चुकी है, जो मैंने बताया फर्स्ट केस PhD है बट नेट नहीं,
सो यू आर ऑल्सो एलिजिबल. नेट है, पीएचडी नहीं, यू आर ऑल्सो एलिजिबल. सो अब मुझे आप बताओ कि इन विच कैटेगरी यू आर एंड इन विच कैटेगरी यू वॉन्ट टू गो. सो दिस इज द थिंग. असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप केमिस्ट्री में भी देखोगे तो सेम थिंग, मास्टर्स, नेट और पीएचडी, और दोनों में से अगर 2018 का रेगुलेशन से पास आउट हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो दिस इज़ द थिंग. सारी चीज़ों में यही चीज़ है. कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिसका कि नेट नहीं होता है. दैट एग्जाम्पल नर्सिंग एंड फार्मेसी. नर्सिंग में उनका इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होना ज़रूरी होता है और पीएचडी डिज़ायरेबल कर दिया इन्होंने. यहाँ पे भी फार्मेसी के अंदर भी पीएचडी डिज़ायरेबल कर देते हैं और पीसीआई में रजिस्ट्रेशन मस्ट होता है. सो दिस इज़ अ डिफरेंट सीन. ओके, सो नाउ दिस आई वांट टू शो यू कि देखिए जो नेट हैं जिन डिपार्टमेंट में नहीं होता वो लोग को नहीं करना है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि लाइक सर आई एम PhD, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी एंड इफ आई टेक एडमिशन इन द zoology or in the life sciences, then what will be the my scenario? See, the concerned relevant allied subject at PG and PhD level, whichever applicable, will be decided by the screening committee. फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में पोस्ट आई है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पोस्ट आई है एंड यू आर फ्रॉम द केमिस्ट्री, पीएचडी आपने केमिस्ट्री से की है, सो यू हैव टू अप्लाई. रिव्यू कमिटी जो स्क्रीनिंग कमिटी है वो डिसाइड करेगी कि आपको लेना है कि नहीं, बट आप एलिजिबल होगे. वो शॉर्टलिस्ट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट पैरामीटर्स. फाइन. सो दिस इज़ द थिंग जिसके ऊपर सिलेक्शन होगा. और देखिए सिलेक्शन कैसे होने वाला है ये भी मैं आपको बता दूं. ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक स्कोर, द परफॉर्मेंस, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं. अगर पीएचडी है तो डेफिनेटली उसको वेटेज मिलेगा, उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होगी एज़ पर द यूजीसी रेगुलेशन 2018. उसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू होता है एंड यू विल बी सेलेक्टेड. सो दिस इज़ द वन एडवर्टीजमेंट. अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो देन यू कैन अप्लाई. दिस इज़ वेरी सिंपल एडवर्टीजमेंट. नाउ द सेकंड एडवर्टीजमेंट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान. ये भी लाइव है एडवर्टाइजमेंट. असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर की पोस्ट हैं और ये रोलिंग एडवर्टीजमेंट है. और मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, द थिंग इज़ दैट अगेन इसके अंदर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है, स्कूल्स में है, लाइफ साइंसेस, एजुकेशन, ह्यूमैनिटी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस. फाइन. नाउ द थिंग इज़ दैट अगेन मैं उसी चीज़ पे आ जाता हूँ आपको दिखाने के लिए, प्रोफेसर की छोड़ के. सो आपको ये चीज़ समझ में आएगी. लाइक फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यू विल बी एलिजिबल फॉर श्योर. ठीक है, देखिए ये बायोकेमिस्ट्री, मास्टर्स, देन 55% मास्टर्स होना चाहिए सेम सब्जेक्ट में 55. देन यहाँ पे क्लियरली लिखा है नेट इन लाइफ साइंसेस. जो कॉमर्स का है नेट इन कॉमर्स. ठीक है, और उसके बाद द सेम लाइन लिखी हुई है. आप देखिए दो यूनिवर्सिटीज़ सेम लाइन कॉपी कर रही हैं. दैट मीन्स कि अभी जो एडवर्टीजमेंट आने वाले हैं विच विल बी ऑन दिस फॉर्मेट. अगर आपका 2018 का पीएचडी है देन यू डोंट हैव टू टेक केयर अबाउट द नेट. जस्ट फॉरगेट अबाउट. आप परेशान मत हो, नेट नहीं निकल रहा है कि बिना निकाले सब कुछ नहीं हो पाएगा. सो नथिंग लाइक दैट. ठीक है, आप सभी देख सकते हो सेम लाइक 55% मार्क, मास्टर्स एंड और नेट और पीएचडी. ये भी सारी पोस्ट अभी लाइव हैं. माइक्रोबायोलॉजी, योगा है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है. तो ये दोनों एडवर्टीजमेंट लाइव हैं. आप चाहो तो इसमें किसी में भी अप्लाई कर सकते हो. बट माई मोटो, माई aim is to show you कि what is the eligibility and you are eligible from right now, from your masters you are eligible. तो application apply करना शुरू करो. otherwise आप ये सोचोगे first I'll join, first I'll complete my net, उसके बाद सोचोगे I'll just qualify the net JRF, then उसके बाद मैं PhD एडमिशन लूँगा, फिर मैं 5 साल में PhD करूँगा. उससे पहले आपके जो जूनियर्स होंगे वो सिर्फ नेट के बेसिस पे दे विल एब्जॉर्ब इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़, और यूनिवर्सिटीज़ में जाने के बाद वहाँ से पीएचडी कर लेंगे एंड आप पीएचडी ख़त्म करोगे एंड फिर सोचोगे जाओगे. सो दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट सिनेरियो. सो पॉलिश योर सेल्फ, क्लियर योर थाट्स, क्या करना है, कैसे करना है, ये बिल्कुल मत सोचो कि फिनिश होने के बाद करने वाले हो. सो बहुत सारी चीज़ें हैं, आई एक्सप्लेन. और स्टिल इसके बाद कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट्स करते रहना सो दैट आई विल क्लियर योर डाउट्स. डिस्कशन कर लेंगे उसके बाद. Thank you so much. Have a nice day. Bye-bye. Take care. If you still any doubt, just join our group and clear your doubts. Bye-bye. Take care.